Hi guys, this is Dhananjay here from Moksh, and I am the CEO of Moksh, and we are going to talk about the journey of a doctor today. But have you thought something about what after NEET? This is the journey of a doctor, and that is what we are going to tell you. And you have not, most of the students have not given thought of studying things which are after NEET. आपका requirement है what after NEET. आपको complete roadmap अगर नहीं पता नीट का तो सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाएंगे आप लोग. ठीक है. So let's understand what's the right knowledge at the right time that you can gather so that you can take a proper informed decision at the right time. ये सभी को पता है नंबर्स. इसका मतलब है करीब करीब 49 पीपल की क्यू लगती है, उनको रिजेक्ट किया जाता है और एक को एमबीबीएस को नीट के थ्रू एडमिशन हो जाता है. दिस इज द रेशियो. दिस रेशियो इज ओनली 2.2%. 16 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सिर्फ 35,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के लिए. सो ये जो फनल दिख रहा है, पहले आपको ऐसा लगता था नीट इज द वे टू बिकम अ डॉक्टर. बेसिकली नीट इट प्रूव्स is a way to reject 98% of the students. That's what is happening now. Hardly 2.2% of the students, and that also 50% will be open, 50% will be reserved. It's a very, very thin line between the success and the failure. You have been working for 2 years to reach this end, but to penetrate this wall and jump over to the success line is very difficult. 98% of the students will fall flat here. 2% of the students will go here. That's the kind of a ratio. You all must be knowing the number of students appearing in 2020 NEET and number of government medical seats. Just apply your percentage and you will know. So what will happen after NEET? There are 6 things which can happen after NEET for you. 6 roads. Every student will be on one or the other roadmaps. The most successful student who has got 560 plus in NEET, okay, is the plan A, he's got a government medical seat somewhere or the other in your own state or outside, but you are going to get into that. But the moment you realize that you are not a 98 percentile student, what will happen? You are going to run for a private college, correct? In such circumstances, you are going to waste a lot of time, because when you go and attend the counseling sessions there, suppose you got 400, that's a fairly good number. Yeah, that's a 90 percentile almost every year, around 400. So you will feel I can get into the private. When you go there, you will know for 50 lakhs, 60 lakhs, depending on the college, is 70 lakhs cost. Your budget is no more than 15 to 20 lakhs for the entire course of MBBS. So this is a useless thing for the people who do not have that kind of a money. So slowly and steadily, this became the second option is for people who have money. The third option is for the people who do not have merit and who do not have money. That's the problem. So those people who happen to be there, they are going to go to MBBS abroad, who do not have merit, who do not have money, but their passion is to become a doctor. They cannot see themselves as anything else. I hope you are getting my point now. So these are the only 3 ways permitted by Medical Council of India. Either you go through merit to a government college, or via money in a private college or deemed university, or go abroad. Just qualify NEET and you can go abroad. That's it. So it's almost a guaranteed admission system. So it's a very easy system. So that's why you can see that at bachelor's level, more than 15,000 students go abroad at the age of 18. उसमें से 50% लड़कियां रहती है. So 18 साल की उम्र में Indian traditional conventional families sending their sons and daughters abroad without any experience
is something which has happened because of the desperation. जो पैशन है, जो डेस्परेशन है डॉक्टर बनने का, वो इंडिया में खत्म हो नहीं रहा है। आखिर वो लोग डॉक्टर बनने को अब्रॉड चले जाते हैं। गाइस, ये 3 तो समझ में आ गया आपको, बाकी के 3 जो है वो भी समझ लो। एक है कॉम्प्रोमाइज करने का, डेंटिस्ट्री, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक में चला जाने का। दूसरा है रिपीट करने का नेक्स्ट ईयर की नीट के लिए, और तीसरा है बीएससी। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स हाथ ऊपर करके चले जाते हैं, हमको नहीं जाना है डॉक्टर, हमको डॉक्टर नहीं बनना है, we do not have the capability, I don't want to try it again. They could simply go to BSc Bio, Biochemistry, Chemistry, or something or the other. For all the people who are getting into BSc, most of the students do not know there are roadmaps wherein you can do BSc in India and continue your MBBS program abroad. So, अगर MBBS abroad का program 5.8 years का है, अगर आपने BSc इंडिया में कर लिया तो बाकी का सिर्फ 3.8 ईयर का प्रोग्राम करना है वहां पे। सो ऐसे आपका स्प्लिट भी हो जाता है, क्रेडिट ट्रांसफर होती है BSc की। तो ये इनके लिए है, जरूरी नहीं है कि अपना सपना तोड़े। BSc में ले लिया, बहुत सारे कारण हो सकता है अभी पेरेंट की फाइनेंशियल हालत ना हो सकता है कोरोना की वजह से डर के मारे पेरेंट बोले कि अभी तू 2-3 साल यहीं पे रह जा, 1 साल यहीं पे रह जा। हो सकता है यू आर नॉट लुकिंग एज मैच्योर्ड एज यू शुड हैव बीन टू ट्रैवल अब्रॉड, तो पेरेंट्स बोलेंगे भैया तू इंडिया में रह जा। तो ये सारे बच्चे बीएससी में लेते हैं। इवन इफ यू आर इन बीएससी यू कैन स्टिल रीच एमबीबीएस। इमेजिन आज की तारीख में इंडिया में 6.5 लाख डॉक्टर की कमी है, और हर साल करीब करीब 10 लाख स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं। ये सारे बीएससी की क्रेडिट यूज कर सकते थे, एमबीबीएस बन सकते थे, इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इनको पता ही नहीं है कि बीएससी का क्रेडिट कैसे यूज होता है। So guys, this is a fantastic program. This is a super program because it doesn't need, need high scores and all. But the best is government colleges. This is something which is very expensive. This is compromise. This is delay in your process. So this is the first best option. This is the second best option. This is the third best option that you have got. These are the 6 roads which will be in front of your eyes when you appear for NEET and come back to, when you wake up on the next day, you will realize you will be standing on one of these 6 nerves. Now, हम लोग ये समझते हैं कि ऐसा कुछ सडनली हो गया 2018 में, 2019 में कुछ रूल चेंज हो गया। 2019 में ऐसा क्या रूल हुआ कि जिसकी वजह से लोग फॉरेन जाने के लिए ज्यादा अब्रॉड के लिए भागना चालू किए, इंडिया की प्राइवेट कॉलेजेस को बंद कर दिए। सो देयर वाज अ चेंज इन रूल 2018। MBBS in India, if you do, you get a degree from MBBS college or a university. You approach Medical Council of India, ask them for practice license, they will give you immediately. But if you're coming from abroad, they will ask you कि भाई आपने अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट पास की, लाइसेंस एग्जाम पास किया, आपने एक बार उसको पास तभी जाके लाइसेंस मिलेगा। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन और MCI स्क्रीनिंग टेस्ट, ये पास करोगे तो ही लाइसेंस मिलेगा, तो ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर इंडिया में करोगे तो आपको डायरेक्ट कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइसेंस मिलेगा। ये सिस्टम में फ्लॉ था। इसको भी MCI अप्रूव करता है, इसको भी MCI अप्रूव करता है, बट दोनों के बीच में गैप रखा था क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं चाहिए था कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे आए उनके लिए कोई एक एडिशनल स्टेप हो। 70 लाख रुपया जो बच्चा देता है, पैसा दे के डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो बोलेगा सर मेरे को गारंटी चाहिए कि मेरे पास लाइसेंस होगा, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करने के लिए ही तो ये पैसा दे रहा हूँ आपको। 2019 बंद करने देना। 2019 what happened, the rule changed. Even if you are doing it from India,
you have to give one license examination and that's called national exit test. अब्रॉड के लिए तो था ही था FMG, उसको रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट ने, बट इंडिया के लिए भी वही एग्जाम इंट्रोड्यूस हो गया, सबको यूनिफॉर्मिटी दे दिया, सबको एक एग्जाम देनी है, चाहे आप इंडिया से पास हुए या अब्रॉड से पास हुए। तो आपको क्वालिफाई करोगे तो लाइसेंस मिलेगा और वही एग्जाम के थ्रू अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपको पीजी का सीट भी मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर पीजी तक का प्रोग्राम तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि हर बच्चे को स्पेशलाइजेशन करना है, किसी को सिर्फ एमबीबीएस करके अपनी करियर खत्म तो करनी नहीं है, छोटा सा क्लिनिक खोल के वहां बैठना है या आपको कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन करना है। अभी से अपनी पूरी रोड मैप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो हाफ वे अटक जाओगे। अभी आपका मन है कार्डियो बनने का, न्यूरो बनने का, पीडियाट्रिक बनने का, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनने का, रेडियोलॉजिस्ट बनने का, ये बनना है तो आपको पीजी करना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, एमडी एमएस तक जाना पड़ेगा इन शॉर्ट। और ये जाने के लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम में मेरिट में आना पड़ेगा। तो हमारा जो पूरा करियर का प्लान बनाना है आज की तारीख में हमको, वो बहुत सिंपल है। मैं एमबीबीएस तो मैं इंडिया में भी कर सकता हूँ, अब्रॉड में भी करूंगा, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया रहेगा। पर चाहे मैं इंडिया में हूँ या अब्रॉड में हूँ, जब मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ उसी दौरान मैं अपने लाइसेंस एग्जाम की तैयारी भी करूंगा, ताकि मैं मेरिट में आके मैं पीजी करूं। हर कंट्री का ये सेम सिचुएशन है। नेक्स्ट है नेशनल एग्जिट टेस्ट, वो इंडिया के लिए है। यूएसएमएलई वो यूएस के लिए है। एफएसपी जर्मनी के लिए है। प्लैब यूके के लिए है। तो सिस्टम सेम है। आपको अपना एक ही एग्जाम देना है, क्रैक करना है। जो एक एग्जाम होगा, क्वालिफाई करोगे तो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा, और अगर मेरिट में आओगे तो आपको पीजी का सीट मिलेगा। अब इससे क्लियर कट रोड मैप आपके पास नहीं बन सकता। इसका मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से, क्या आपको समझ में आ रहा है कि एमबीबीएस के दौरान हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू प्रिपेयर फॉर द लाइसेंस एग्जामिनेशन? आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोल लॉन्च किया है, you can click your opinion over there and I'm sharing the results with you. You can see that 70% of the students have understood very clearly कि बिना लाइसेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। 29% अभी भी सोच रहे हैं सर मुझे समझने दो कि डिफिकल्टी लेवल कितना है, मैं एमबीबीएस में तो जाना है 100%, बट तो उस दौरान मुझे नेक्स्ट या यूएसएमएल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, वो मुझे बाद में मैं डिसाइड करूंगा। और जो 1 और 2% जो है उनका तो हिसाब किताब ही नहीं है लाइफ में, वो बोलते हैं कि नॉट इम्पोर्टेंट, कभी तैयारी करो मत, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डिग्री लेके आओ, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, घर पे बैठो और सो जाओ। ये वो वाले हैं जो जनरली हमारे वेबिनार पे जो एडमिशन एजेंट रहते हैं ना, छोटे मोटे, ये वो वाले लोग हैं। ठीक है, so you just don't consider that important. 70% is a big number which has understood. मैं आप लोगों को कुछ इस सिस्टम के बारे में, रिसर्च कैसे होता है वो बताना चाहता हूँ। सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है, आप गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाने के बाद में आप ढूंढो ये नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में, मुझे कुछ बताओ क्या चीज है ये, और ऐसा क्या इंडियन गवर्नमेंट ने पास कर दिया रूल कि जिसकी वजह से नेशनल एग्जिट टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन गया है, और उसकी वजह से हजारों डॉक्टर रास्ते में आ गए। Thousands of doctors came on roads to fight against this rule because they thought they don't want to give any new exam. They are, they have paid money to the college, 70 lakh rupees दे दिया ना, अब मैंने डिग्री खरीद दिया, वापस आओ, एग्जाम क्यों देनी है भाई मुझे? इसके बारे में आपको जानकारी अगर चाहिए
तो एनएमसी बिल नेशनल मेडिकल कमीशन का कैबिनेट, मतलब अपनी पार्लियामेंट में राज्यसभा होता है, उसकी कैबिनेट बैठती है, सुना होगा आप लोगों ने। आई होप एक बार आप लोग इस हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करना चालू करें तो सच्चाई पहले से जमा होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो, आप रूल देखो अभी। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स मेड इन द फ्रेश एनएमसी बिल, एंट्री टू on the basis of results of national exit test, which will be a common exam across the country. So candidates will not have to appear for a separate exam for admission to PG course. वही examination कि जो लाइसेंस देगा, वही एग्जामिनेशन आपका पीजी का भी सीट देगा। ये पूरा आर्टिकल जो है वो अगर आप पढ़ सको तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई कैन नॉट रीड द होल आर्टिकल राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, बट दिस इज व्हाट कैन चेंज योर एंटायर अंडरस्टैंडिंग। ओके गाइस, this is the way to do your research, and once you know these are the important things, then in that case you will definitely be in a right position to plan your career. Common final year exam to be known as national exit test for admission to postgraduate medical course and for obtaining license to practice medicine. एनएमसी का बिल एक दो चीजें एक ही साथ में होता है, और नेक्स्ट की वजह से आपको कोई भी जात का नीट पीजी कैंसिल हो गया। एक ही एग्जाम अमेंडमेंट के हिसाब से there will not be any additional, there will not have any PG का एग्जाम, एक ही नेक्स्ट का एग्जाम के थ्रू प्रैक्टिस लाइसेंस एंड पीजी का। तो अब हमको यहाँ तक जाना है, तो हम 12th में हैं, हमारे पास 9 से 10 साल का करियर क्लियर होना चाहिए। हमको पहले एमबीबीएस में करना है, और जब मैं ये कर रहा हूँ तभी मैं अपनी लाइसेंस एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा। मैं आज ये भी तय कर लूंगा कि मैं लाइसेंस एग्जाम कौन सी पर तैयारी करूंगा, इंडिया की, यूएस की या जर्मनी की। सभी स्टूडेंट्स को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि अभी हमको कैसे भी करके डॉक्टर बनना है, और इंडिया के अंदर बनने के लिए और अब्रॉड के लिए, अब्रॉड में बनने के लिए, दोनों का रोड मैप अभी एक ही हो गया है। तो क्यों ना हम लोग गारंटीड एडमिशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी ले लें। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं गारंटी बोलता हूँ कि मुझे 98 परसेंटाइल से ऊपर ही आएगा, क्योंकि आखिर तो उतनी ही सीटें हैं, किसी न किसी को तो उसके बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं अभी से तय कर लूं कि मेरा दूसरा ऑल्टरनेटिव, मेरा प्लान बी, अच्छी तरह जानकारी लेके अगर मैं जान ले लूं, तो मैं लाइसेंस एग्जाम की तैयारी के साथ में मैं एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में एमबीबीएस में अच्छे से अच्छी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता हूं विद इन अ बजट ऑफ 15 से 25 लाख, एंड दैट आल्सो नीड्स टू बी स्पेंट इन 5 to 6 years. Maximum students who go MBBS for MBBS abroad are from middle class. Almost everybody is able to afford it. There is no problem on this. So low cost, no entrance exam, सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लो। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कॉलेजेस, और अगर डेवलप्ड कंट्री में गए तो सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स अगर किसी एडमिशन एजेंट ने उल्लू बना दिया और अंडर डेवलप्ड कंट्री में चले गए, जो इंडिया के भी बहुत पीछे हैं, तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो एमबीबीएस अब्रॉड में भी बहुत संभाल के हमको डिसीजन लेने पड़ेंगे, सही जगह पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एडमिशन मिल गया तो मेरी लाइफ बन गई। डोंट बी इन अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस इन थिंकिंग ऑफ दैट, ओके, कि भाई मैं इफ आई गेट एन एडमिशन माय लाइफ इज सेट। नो, in fact, Medical Council of India has approved 450 plus universities. Almost 400 universities are bakwas. You will be surprised. I'll show it to you. 50 are top ranked. अब अगर आपको नहीं पता कि ये मैं कैसे ढूंढूं,
तो आपको कोई भी एडमिशन एजेंट यहाँ पे फंसा देगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होता है कि या ऐसे सोचते मेरे गांव में एक लड़का था, वो लड़का सर किर्गिस्तान गया था तो मैं भी किर्गिस्तान जाने की कोशिश कर, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको इन्फ्लुएंस कर दिया है आपको, और वो तो फंस चुका है। अब आपसे पैसा लूटने के लिए वो तो एजेंट बन गया, वो डॉक्टर बन नहीं सकता। अब किर्गिस्तान जैसी जगह पे जाके आप कैसे डॉक्टर बनोगे भाई? वो खुद ही कंट्री इतना पीछे है। अगर मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए तो मेरे से आगे हो वैसी कंट्री में मुझे जाना है। मुझे यूएस जाना है, मुझे जर्मनी जाना है, मुझे रशिया जाना है, मुझे यूक्रेन जाना है। मुझे फालतू किर्गिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, नेपाल, मॉरिशियस, मॉरिशियस में जाते हैं 12 लाख की बस्ती है वहां पे पूरे कंट्री की। कितने हॉस्पिटल होंगे आप सोच सकते हो? अपने गांव में होता है 12 लाख का बस्ती, छोटा मतलब टाउन होता है, उसमें 12 लाख से ज्यादा होते हैं एक्चुअली। उसे पूरी कंट्री के कहां से आप करो? उसमें भी 50 लाख रुपया खर्चा करके प्राइवेट कॉलेज में मॉरिशस में जाते हैं बच्चे। तो हमको एक डेवलप्ड कंट्री चाहिए, और उस कंट्री में ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है। उधर से टॉप यूनिवर्सिटी में ढूंढूंगा और मैं अपनी लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। मैं किसी भी एडमिशन एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 10 मिनट में आप अपना खुद का रिसर्च चालू कर सकते हो, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी फाइनल कर सकते हो। अगर इंडिया में नहीं मिला, मैंने अपन ने देखा 98 परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो नहीं मिल रहा है इंडिया में। अगर इंडिया में नहीं मिला, आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना गारंटी है। आप बोलोगे सर मैं कभी फॉरेन गया नहीं, मेरा पासपोर्ट बना नहीं, मैं कैसे जान कर सकता तो क्या कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है? तो इसके लिए आप जाओगे यूट्यूब पे। जैसे ही यूट्यूब पे आए, फेक प्रमोशंस चालू हो जाते हैं, वहां पे फंसोगे। जैसे ही घर में बैठे हैं, वहां पे जो स्टूडेंट्स गए हैं, जो फालतू कंट्रीज में गए हैं, वो लोग फोन करेंगे आपको, बोलेंगे आ जाओ बहुत बढ़िया है। कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा ऑलरेडी, धीरे 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 नीट के लिए अभी जो एस्पायर कर रहे हैं वो सबका आना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे एजेंट बैठे हैं, वो आपकी करियर नहीं बना सकते। वो लोग की नजर आपकी करियर पे नहीं, जेब के ऊपर होती है। गूगल पे जाओ, पूरे दुनिया की जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारे के सारी यूनिवर्सिटीज एक ही जगह पे लिस्टेड है। यू कैन चेक इट आउट, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। इसके ऊपर कोई भी एजेंट कितना भी यूट्यूब के ऊपर आके प्रमोशन करे, आपको उल्लू नहीं बना सकता। आप किसको भी ढूंढ के, छोटे मोटे एजेंट को ढूंढ के चले जाओगे उसके ऑफिस में, आपको वो उल्लू नहीं बना सकता। इसका कारण एक है, मैंने अभी देखा तो मैं गया था यूक्रेन में। यूक्रेन में मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो यूक्रेन में वहां पे कोई आया, उसने बोला कि यूक्रेन की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है तरास शेवचेंको। मैंने ढूंढना चालू किया, मैंने विकिपीडिया देखा। यस, तरास इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज। यस, तरास सिखाती है, इंग्लिश में सिखाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 100 इतने साल पुरानी हो, मुझे क्या डरना है फिर? तरास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। वहां पे एक स्टूडेंट आया वीडियो में, और वहां पे उसने तरास का बहुत अच्छा अच्छा बोलने चालू कर दिया। मुझे तुरंत डाउट आ गया कि कुछ लफड़ा है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो प्रमोशन की जरूरत क्या है, खुद ही स्टूडेंट जाके ले लेंगे। फिर मैंने वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में गया और तरास शेवचेंको को ढूंढना चालू किया। जैसे ही ढूंढा, मुझे असलियत पता चल गई। यूनिवर्सिटी को भले कितने भी ज्यादा साल हुए हों, पर मेडिसिन सिर्फ 2 साल पहले सिखाया गया है। इनको जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे अगर मैं भेज दूं, गवर्नमेंट की है, तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। ये यूनिवर्सिटी में मैं नहीं जाऊंगा, न तो मैं कभी किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इनको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है।
मैं वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी भी डाल दो, बट जिसको सिखाने का ही एक्सपीरियंस ना हो, उसके पास से मैं सीखूंगा कैसे? इसी यूक्रेन के अंदर उतनी ही कॉस्ट में आपको 200 साल पुराना यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है? एंड महिमा, आपके पास चॉइस क्या है? इधर यू आर श्योर दैट यू विल स्कोर 550 प्लस, आर यू श्योर अबाउट दैट? Then only you can think about government college. I mean, otherwise you are not going to get in. And for private, you need a budget of 60 to 70 lakhs. So तमन्ना, आपका बजट अगर 20 लाख से कम है तो आप प्राइवेट में कैसे ले सकते हो? मेरे को बताओ, कौन सी प्राइवेट कॉलेज है जो 20 लाख में आपको डॉक्टर बना के देगी? So these are the genuine problems. Absolutely, Rehan Sadal, everybody wants a government college in India. What Moksh can do is they will provide you absolutely free of cost NEET crash course with a guarantee that will upgrade your 50 marks in NEET for sure. अब चाहे आप इंडिया से आओ, ये रहा आपके सामने है, देखो अभी आप 12th में हो, ठीक है? 550 560 से ऊपर गए तो इंडिया है, उसके नीचे गए तो अब्रॉड है, ठीक है? अब अब्रॉड में जाओगे, ये पीजी का सेक्शन है, यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हो। अब आपको लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस एग्जाम की तैयारी तो आपको एमबीबीएस में करनी ही पड़ेगी। तो इंडिया के लिए आप नेक्स्ट करोगे, यूएस के लिए आप यूएसएमएल करोगे, और जर्मनी के लिए आप एफएसपी करोगे। तो ये आपको पहले से तय करना पड़ेगा कि कहाँ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ फाइनली। और क्योंकि ये तीनों की तैयारी अलग अलग होती है, ठीक है? अब चाहे आप इंडिया में करो, चाहे आप अब्रॉड में करो, आखिर तो ये रास्ता सेम ही रहने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ एब्सोल्युटली क्लियरली। आर्यन, चाहे आपको इंडिया में मिलने वाला हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में मिलने वाला हो, ठीक है ना, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर कहाँ पढ़ाई करोगे एमबीबीएस आप। तनवीर सेज यस आई कैन गो अब्रॉड। प्रियंका, abroad will be very cheap in comparison with Indian private colleges, so question is not of money. Avantika Dubey, this whole session is to find out the right college, so our counselors will help you, so since you are open to go abroad. Anjali Devi, you want गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, आई एम आस्किंग यू, आज की तारीख में 2.2% का सक्सेस रेशियो है। आप लोगों को पता होना चाहिए 50% उसमें से ओपन के लिए है, 50% उसमें से रिजर्व के लिए है, बाकी के ऑलमोस्ट 98% तो सिस्टम के बाहर ही होते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, 16 लाख में से सिर्फ 35,000 स्टूडेंट को सक्सेस है, बाकी के लोग सारे के सारे या अब्रॉड या बीएससी या रिपीट या उसी साइकिल में जाने वाले। तो गाइस, रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारी इच्छा है कि हमको जाना है गवर्नमेंट में, तो उसकी तो तैयारी हम 100% कर रहे हैं। इनफैक्ट मोक्ष आपको नीट क्रैश कोर्स का एडिशनल फ्री में पूरा एक्सेस दे रहा है। आप इसी की तैयारी करो, इसी का होप रखो। आप अगर 500 तक पहुंच रहे हो तो हम लोग 550 तक खींच के जाएंगे आपको। प्रॉब्लम वो नहीं है, पर सारे 500 के ऊपर नहीं है, कोई 300 के ऊपर है, कोई 200 के ऊपर है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? उसका 50 मार्क हम लोग 30 दिन में बढ़ा के भी देंगे तो 250 में उसको पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाला। तो उसको इसी का सोचना पड़ता है, ये रियलिटी है। नहीं तो फिर सोचते सोचते या तो बीएससी में या तो फिर रिपीट कर लोगे। तो उससे अच्छा है पहले से प्लान करो अपनी जर्नी अच्छी तरह, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ सही सही टाइम पे, ठीक है? मैं आपकी जर्नी को आपको सामने समझा दिया मैंने। भाई, एमबीबीएस अभी इंडिया में करो या अब्रॉड में करो, ये जर्नी आपकी सेम रहने वाली है। लाइसेंस एग्जाम की तैयारी सभी को करनी पड़ेगी, वेदर यू आर इन इंडिया और अब्रॉड, वेदर यू आर इन गवर्नमेंट और प्राइवेट, वेदर यू आर इन स्टडिंग इन रशिया और यूक्रेन, नथिंग मैटर्स।
ये आपका सेम है, ये आपका पीजी का सेम है। अब ये सिर्फ बदल सकता है और कुछ नहीं बदल सकता। गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। चाहे एमबीबीएस हम इंडिया में करेंगे, चाहे हम अब्रॉड में करेंगे, लाइसेंस एग्जाम मोक्ष कैसे देता है वो अभी समझाऊंगा। मैं अभी एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जिसको जिसको इंटरेस्ट है। Absolutely, Bindu. Fantastic. Fantastic question. If I do MBBS in Russia, how do I do PG in USA? Can you believe, Bindu, that PG in USA is absolutely free of cost? In fact, you earn stipend. This is where I was telling everybody that all the students must listen to the most important thing. There are ways which are really not known to the students or the parents, and there are plans which you should adhere and implement in your career. For example, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एवरेज स्टाइपेंड ड्यूरिंग रेजिडेंसी। अभी तक मैं डॉक्टर बना नहीं हूँ, मेरा रेजिडेंट डॉक्टर के हिसाब से मैं वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ यूएस में। माय एनुअल स्टाइपेंड इज 61,200। इसका मतलब है मैंने एमबीबीएस इन रशिया किया। आई वेंट टू द टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक क्रीमिया or Kazan State Medical, okay? And I prepared for USMLE during my journey. मेरे को एमबीबीएस रशिया का खर्चा 20-25 लाख रुपया आता है। और आपको पता है, ये 25 लाख रुपया मैंने एमबीबीएस पे डाला, मैं यहाँ पे $61,000 पर ईयर कमाने वाला हूँ। और ये स्टेप 1 और स्टेप 2 हर स्टूडेंट को डॉक्टर, अब मोक्ष है, हर स्टूडेंट को एमबीबीएस डॉक्टर बनते समय देता है। From first year to 6th year, we will teach you USMLE so that you can pass off step 1 and 2 CK and you are MBBS in Russia directly clerkship. So you just have to understand now, sir, university, how do we select this university now if it is to go abroad? Because if it is in Russia, there are a lot of problems that you must understand. You should visit the Indian Embassy website and understand the actual problem that every student faces, क्योंकि सब लोग अच्छे तरीके से रिसर्च करके नहीं जाते हैं किसी छोटे मोटे एजेंट के पास। This is the Indian Embassy website. You guys must understand that this is the most important website for you before you can take a decision to go to Russia. They are giving you advisory for prospective Indian students for studying in Russia. Just read this and you will be zapped. इतने सालों से हजारों स्टूडेंट्स गए हैं, हजारों आ भी गए हैं, और अभी 10,000 स्टूडेंट रशिया में पढ़ रहे हैं। In spite of this, listen to this story. There is a publicity in India. Advertisements, promotions, these are the tactics that they use about English medium courses in medical studies in Russia. This is not correct. ये गलत है, इंग्लिश मीडियम नहीं है वहां पे। मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशिया इज लोकल लैंग्वेज। फर्स्ट 3 इयर्स इंग्लिश में सिखाएंगे, 4th ईयर से आपको रशियन लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। गाइस, अगर आप नहीं समझ सकते ये चीज को तो आप फंसने वाले हो। 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन रशिया टीच यू इन रशिया। अगर आप इंडियन एम्बेसी को हमने पूछा कि सर एक बाजू से एमसीआई की 50 कॉलेज अप्रूव्ड है और दूसरे बाजू से आप लिख रहे हो कि मैक्सिमम कॉलेज रशियन में सिखाते हैं, तो आप हमको बताओ कैसे डिसाइड करें कौन सी कॉलेज में जाना है। अगर रशियन में सिखाने वाली कॉलेज को भी एमसीआई के लिस्ट में डाल दिया तो कैसा चलेगा। तो हम लोग इंडियन एम्बेसी ने रेटिंग लिस्ट हर यूनिवर्सिटी का अभी डाल दिया है अपने वेबसाइट के ऊपर, इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, which you can definitely go through. You can check the ratings
of every university, and you can finalize which university would you like to go for. टॉप वाली में जाना है या बॉटम वाले में जाना है, रैंकिंग आपके सामने है, रेटिंग लिस्ट आपके सामने है, और लिस्ट फोर्ब्स लिस्ट जो बोलते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन एम्बेसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने दे के रखा है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाउटिंग देयर कैपेबिलिटीज टू असेस द यूनिवर्सिटीज। एंड इंडिया में प्रमोट क्या होता है? पर्म स्टेट। इंडिया में प्रमोट क्या होता था? स्क्वायर स्टेट। यूट्यूब पे चले जाओ, सिर्फ टाइप करो स्क्वायर फ्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, आपको वहां पे बहुत सारे वीडियोस इंडियन को कैसे उल्लू बनाते हैं, झूठ बोल के लेके जाते हैं। Orenburg, similar Russian. So please don't get into kachras. Just go and select the top ones. That is the best way to go about. There are multiple options of ministries. Ministry of Healthcare is there. You also have Ministry of Education. उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के अंदर भी और लिस्ट है। ये सारी एमसीआई अप्रूव्ड है। आप इसमें कहाँ पे भी जा सकते हो, सिर्फ चेक कर लो। जैसे कि कजान फेडरल हमने चेक किया। यू विल हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल। वापस वर्ल्ड डायरेक्टरी पे चले जाओ, होम पे चले जाओ, रशिया सिलेक्ट करो कंट्री का नाम, और कजान देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उल्लू बनाते हैं आपको। बहुत सारी एमसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। मैंने कजान को ढूंढा क्योंकि मैंने एक वेबिनार देखा था, एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। वो बोलता था कजान नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, कजान फेडरल। तो मैंने बोला ये 1802 में बनी हुई है, 1804 में बनी हुई यूनिवर्सिटी है, सॉलिड एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट की कॉलेज है, सुपर डुपर है। पुतिन ने खुद इसको अवार्ड दिया है, ये है वो है, 50 तरीके की बातें साटे सब बता रहा था मेरे को वीडियो पे। So I thought I must assess this and assess the Kazan state. Both of the universities needs an assessment. तो हम लोग ने वर्ल्ड डायरेक्टरी पे असेसमेंट चालू किया। कजान फेडरल देखा, बोल बराबर है, 804 की यूनिवर्सिटी है, मेडिसिन 6 साल से सिखा रहा है। Who wants to go to this useless university which has got no experience to teach medicine? फिर मैंने बोला चलो कजान फेडरल नहीं है, कजान स्टेट देख लेते हैं, दोनों बाजू बाजू में है, सेम खर्चा है। कजान फेडरल को 6 साल है, कजान स्टेट को 106 साल है। नाउ टेल मी, would you not like to go here? In case you have to go to Russia, who will choose that useless Kazan federal? But videos will be promotional videos, will always find you over there. I hope you have understood now. Ruth Philip, if you want to do UG in USA, you need two things. You can do UG in USA. You need 2.5 to 3 crore rupees, and you need to have MCAT score. MCAT. So have you given this examination? Please tell me. No, then you forget about doing UG in USA, because without that you cannot get into this.